आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद में कर्नाटक राज्य रैयत संघ हुमनाबाद व रैयत मोर्चा भाजपा हुमनाबाद की ओर से कर्नाटक सरकार के खिलाफ निकाली गई विरोध रैली। गारंटी कम होने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ऑफ बजट अनुदान रोक दिया। कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु में बंद का आह्वान। कर्नाटक सरकार की विफलता के विरोध में प्रदर्शन। केटी रामाराव ने अमित शाह पर लगाए झूठी टिप्पणियों के आरोप। जय शाह के पद को लेकर भी पूछा सवाल। राष्ट्रपति मुर्मू का जम्मू कश्मीर दौरा आज स्काई वॉक और 1500 लॉकर्स का करेंगे उद्घाटन। आईआईटी कानपुर में हिंसक मारपीट में बदला कबड्डी मैच, जमकर चली कुर्सियां और लात घूंसी। अब समाचार विस्तार से। हुमनाबाद में मंगलवार को कर्नाटक राज्य रैयत संघ हुमनाबाद व रैयत मोर्चा भाजपा हुमनाबाद के संयुक्त आश्रय से कर्नाटक सरकार के खिलाफ एक विरोध रैली निकाली गई। इस रैली में हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल, सुभाष कल्लूर, अध्यक्ष बीएसएस के शुगर फैक्ट्री हल्लीकेड और रैयत संघ अध्यक्ष, भाजपा रैयत मोर्चा अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ता और हुमनाबाद तालुका और चिड़गुप्पा तालुका से कई किसानों ने भाग लिया। इस विरोध रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तालुका हुमनाबाद और चिड़गुप्पा को बरगाल घोषित नहीं किया गया तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया गया और किसानों की समस्याओं का हल करने और बरगाल घोषित करने की मांग की। इस अवसर पर हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल ने मीडिया से बात की। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहिउद्दीन लाटोरी की रिपोर्ट। ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಚಿಡುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಾ ರೈತ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇವತ್ತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 195 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಪೀಡಿತ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾರ। ಅದರ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಚಿಡುಗುಪ್ಪ ಇವು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗೆ ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲೋ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಇವತ್ತು ತಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಮುಂದ ಧೂಳುಗುಂಡಿ ಹತ್ತಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾಲು ಆಗ್ತದ। ನಮ್ಮ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಗೂ ಚಿಡುಗುಪ್ಪ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಜಮೀನುಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಜಮೀನಿದೆ ಗೊತ್ತಂಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಹೊಡಿ ಗೊತ್ತಿವೆಲ್ಲ। ಇವತ್ತ ತಾವು ಇವತ್ತ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಒಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರಿ ಅಡಿ ಇದೆ, ಬೆಳಾ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ। ಇವತ್ತ ಬಿತ್ತಣಿಕೆ ಆಗಿನ ಮ್ಯಾಕ ಇವತ್ತ ಭಾಲ್ಕಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಥೋಡೆ ಹೊಲಗಳು ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ಮಳೆ ಬರಲೋಯ್ತು ಒಂದ್ 8 ದಿವಸ 15 ದಿವಸ 20 ದಿವಸ ಅಂತಂದ್ರ ಬೆಳೆ ತಾಳ್ತದ। ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಚಿಡುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕದಾಗ ಪೂರಾ ಕೆಂಪ್ ಮಣ್ಣಿದೆ ಗೊತ್ತಾ। ಆ ಕರಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಂಪ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಇರಲ್ಲ। ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಚಿಡುಗುಪ್ಪ ಇವತ್ತ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತಾವು ಏನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಕೂಡ 1 ತಿಂಗಳ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಡಬಾಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂತು। ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ 12 ಮಳೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತ। ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಇವತ್ತ ರೈತರು ವಿದ್ಯುತ್ಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ। ಇವತ್ತ ಒಂದು TC ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಯದಂತಂದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ। ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಸೋಯಾ ಏನ್ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತ। ಉದ್ದು, ಹೆಸರು ಏನು ಒಂದು ಕಾಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸೋಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತ। ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಮಳೆ ಹೋಗಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂದು ಏನ್ ಕಾಳು ಇವತ್ತೇನು ಬೋರ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬಹಳ
ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಆ ಬೆಳೆದಂತ ಇವತ್ತ ಏನು 1 ಎಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮೊದಲ ಏನು 4-5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತನಕ ಏನ್ ಬೆಳೆ ಫಸಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೊಲಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು 1-1.5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ. ಆ 1-1.5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಪಿಎಂಸಿದಾಗ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಇವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದವರು ತೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ. कांग्रेस की 5 गारंटियों ने भले ही विकासात्मक फंडिंग को धीमे कर दिया है, जिससे उसके अपने विधायक परेशान है, लेकिन उन्होंने एक आवश्यक कर वित्तीय प्रथा को भी समाप्त कर दिया है, जो लगातार सरकारों के तहत चली आ रही थी। कई वर्षों में पहली बार किसी भी विधायक को कोई ऑफ बजट अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है। एक सत्र ने कहा कि 5 गारंटियों से उत्पन्न राजकोषीय गर्मी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को अतिरिक्त अनुदान के अनुरोधों को अस्वीकार करने के लिए मजबूर किया है। इससे जहां कांग्रेस विधायक में असंतोष फैल गया है, वहीं वित्त विभाग खुश है। तमिलनाडु के तिरुवरूर में कावेरी जल बंटवारा विवाद पर कावेरी डेल्टा संरक्षण आंदोलन ने तमिलनाडु में बंद का आह्वान किया है। उन्होंने कर्नाटक सरकार की विफलता के विरोध में यह कदम उठाया है। कावेरी जल बंटवारा विवाद को लेकर नागपट्टिनम में किसानों संघ ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने लोगों के बीच में जाना बढ़ा दिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ गया है। इस बीच बीआरएस नेता ने भाजपा पर हमला किया है। बीआरएस नेता ने अमित शाह पर आरोप लगाया और उनकी टिप्पणियों को झूठा कहा है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने मंगलवार को आरोप लगाया कि आदिलाबाद में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो टिप्पणियां की वह झूठी थी। उन्होंने कहा कि शाह ने बैठक में सफेद झूठ कहा है, इस वजह से शाह वहां हंसी के पात्र बन गए। शाह ने 5 साल पहले वादा किया था कि वे भारतीय सीमेंट निगम को पुनर्जीवित करेंगे, लेकिन अब 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक वह पुनर्जीवित नहीं हो सका। 5 साल बाद भी शाह का वादा अधूरा ही रह गया। तेलंगाना की स्थापना को करीब 1 दशक हो गए हैं, लेकिन राज्य को एक भी शैक्षणिक संस्थान नहीं दिए गए। शाह ने दावा किया कि तेलंगाना आत्महत्या के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर है, जो सिर्फ भ्रामक है और तथ्यहीन है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर किसी तरह के नियंत्रण न होने का दावा करती है, तो वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ऐसा दावा करते हैं जिससे सनसनी फैल जाती है। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते तो एक फोन करके सीबीआई के छापे को रुकवा सकते थे, लेकिन बीजेपी ऐसा करने में विश्वास नहीं करती है। दरअसल बंगाल की अलग अलग नगर पालिकाओं में अवैध तरीके से नियुक्तियों के मामले में सीबीआई ने बीजेपी विधायक पार्थ सारथी चट्टोपाध्याय घर पर छापेमारी की थी। बता दें कि पार्थ राणाघाट नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी विधायक मदन मित्रा के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। बाराबंकी मुंबई में पिछली 4 अगस्त को
300 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद होने के दौरान फरार हुए नशे के 2 बड़े सौदागरों को यूपी, एसटीएफ और महाराष्ट्र की क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने मंगलवार को बाराबंकी में गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक महाराष्ट्र के सबसे बड़े ड्रग माफिया ललित पाटिल का छोटा भाई है, जबकि दूसरा उसके नशे के कारोबार का प्रबंधक है। यह दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। इन्हीं लोगों ने 2 अगस्त को महाराष्ट्र में ललित पाटिल को पुलिस की हिरासत से फरार करवा दिया था। एसटीएफ के अनुसार महाराष्ट्र पुलिस की पुणे क्राइम ब्रांच के साथ संयुक्त अभियान में 4 अगस्त को नासिक में करीब 300 करोड़ रुपए की 150 किलो ड्रग्स बरामद की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिन का जम्मू कश्मीर का दौरा आज यानी बुधवार 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति गुरुवार को दिल्ली लौटने से पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगी। माता वैष्णो देवी की यात्रा के साथ ही वह यहां 15 करोड़ रुपए की लागत से बने स्काई वॉक और पार्वती भवन में बने 1500 लॉकर्स का भी उद्घाटन करेंगी। शारदीय नवरात्रों पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड माता के भक्तों के लिए सुरक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण स्काई वॉक की सुविधा शुरू करने जा रहा है। यह स्काई वॉक माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में उस संकरे रास्ते पर बनाया गया है जहां यात्रियों की सबसे अधिक भीड़ रहती है। सुरक्षा के लिहाज से अधिक महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस स्काई वॉक को श्री माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर के उस 300 मीटर ट्रैक पर बनाया गया है जहां माता के दर्शन के लिए आने और जाने वाले यात्रियों की सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा भारत में मजबूत आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान जताए जाने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि देश विश्व में एक चमकता स्थान और विकासियों नवाचार का पावर हाउस है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की 2023-24 की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर का अनुमान 0.2% बढ़ाकर 6.3% कर दिया है, लेकिन उसने वैश्विक वृद्धि का अनुमान घटाकर 3% कर दिया है। मोदी ने IMF के आंकड़ों का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया मंच X पर लिखा, हमारे लोगों की ताकत और कौशल से आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया में एक चमकता स्थान और विकासियों नवाचार का पावर हाउस है। हम समृद्ध भारत की दिशा में अपनी यात्रा को मजबूत करना जारी रखेंगे और सुधारों के अपने पथ को और आगे बढ़ाएंगे। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 96 साल की उम्र में पढ़ाई करने वाली कात्यायनी अम्मा का मंगलवार 10 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया। उनको केंद्र सरकार ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। वह 101 साल की थी। केरल के अल्लापुझा में चेप्पड़ के पास मुत्तम की मूल निवासी कात्यायनी अम्मा का नाम मीडिया की सुर्खियों में तब आया जब 2018 में केरल सरकार की साक्षरता मिशन प्रोग्राम में वह सबसे अधिक उम्र की शिक्षार्थी बन गई। उन्होंने इस साक्षरता मिशन के लिए खुद वॉलंटियर किया था। यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई करते हुए टेस्ट में 2 विषयों में पूरे नंबर और लिखने में 40 में से 38 नंबर लाकर शानदार परीक्षा पास की थी।
उनके इस शानदार प्रदर्शन पर राज्य के सीएम पिनराई विजयन ने उनको सम्मानित किया। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान बच गई। यह घटना मंगलवार की है, जब हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 21 से रवाना हुई। चलती ट्रेन पकड़ने की होड़ में एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा और गार्ड के केबिन में घुसने की कोशिश करने लगा। हालांकि वह अपना संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह में फिसल गया, लेकिन उसी वक्त आरपीएफ अधिकारी उसकी ओर दौड़े और उसे सुरक्षित बाहर खींच लिया। अधिकारी की पहचान सहायक उपनिरीक्षक विनोद कुमार चौधरी के रूप में की गई है। यात्री ने बचाने वाले शख्स के प्रति आभार जताया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। समय पर की गई कार्रवाई के लिए अब लोग आरपीएफ अधिकारी की सराहना कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब आरपीएफ कर्मी ने किसी यात्री को बचाया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में एक कबड्डी मैच हिंसक लड़ाई में बदल गया। मामला इतना बड़ा कि संस्थान के वार्षिक खेल उत्सव उद्घोष के दौरान भाग लेने वाली 2 टीमों के सदस्यों ने एक दूसरे पर कुर्सियां से हमला किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस झगड़े के बाद प्रबंधन ने कहा कि संबंधित टीमों को आगे भागीदार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दोनों टीमों के छात्र एक दूसरे को पीटते और कुर्सियां फेंकते नजर आ रहे हैं। कई कबड्डी खिलाड़ी एक दूसरे को लात मारते और प्लास्टिक की कुर्सियां तोड़ते भी दिख रहे हैं। वहीं कई छात्राओं को घटनास्थल से भागने की कोशिश करते हुए कैमरे में कैद किया गया। ऐसा लग रहा था कि यह कॉलेज फेस्टिवल नहीं बल्कि WWE मैच चल रहा है। हालांकि यह पता नहीं चल सका है कि यह टीमें कौन से कॉलेज से थी। साथ ही फिलहाल मारपीट की वजह का भी खुलासा नहीं हुआ है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद में कर्नाटक राज्य रैयत संघ हुमनाबाद व रैयत मोर्चा भाजपा हुमनाबाद की ओर से कर्नाटक सरकार के खिलाफ निकाली गई विरोध रैली। गारंटी कम होने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ऑफ बजट अनुदान रोक दिया। कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु में बंद का आह्वान। कर्नाटक सरकार की विफलता के विरोध में प्रदर्शन। केटी रामाराव ने अमित शाह पर लगाए झूठी टिप्पणियों के आरोप। जय शाह के पद को लेकर भी पूछा सवाल। राष्ट्रपति मुर्मू का जम्मू कश्मीर दौरा आज। स्काई वॉक और 1500 लॉकर्स का करेंगे उद्घाटन। आईआईटी कानपुर में हिंसक मारपीट में बदला कबड्डी मैच। जमकर चली कुर्सियां और लात घूंसी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।